preparation for the 200-plus farm unions protesting, Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee Secretary General Sarwan Singh is currently holding a meeting with several farmers unions early morning. This comes after last night's negotiations between union ministers and farmers in Chandigarh. That meeting, though, proved to be inconclusive. Union Minister Arjun Munda has stated that the government reached an agreement on some topics, but some others are still left. The government is hopeful of reaching a solution. On the other hand, farmer leader Sarwan Singh has said that even though the meeting went on for 5 hours, the central government has not been able to take a strong decision on any issue. Listen it. किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से अभी भी हम मानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। हम खुले मन से तैयार हैं और आशान्वित है कि आगे किसी बात पर ठोस निर्णय केंद्र सरकार नहीं ले सकी। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने का सवाल था, तो केंद्र हमसे सिर्फ आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए, टालने के लिए समय मांग रहा है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार, तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके चलते 114 कंपनियां दंगा प्रतिरोधी उपकरणों के साथ सीमावर्ती तथा अन्य संवेदनशील जिलों में तैनात की गई हैं। इसमें से 64 कंपनियां अर्धसैनिक पुलिस बलों की हैं तथा 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शरारती तत्वों तथा उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन इत्यादि की भी मदद ली जा रही है। हरियाणा पुलिस आम जन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में होने वाले किसी भी अप्रिय परिस्थिति से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। Arzu Seth is joining us live from the Ghazipur border on the broadcast. Arzu, what is the situation there this morning? Have farmers started to reach the Ghazipur border? Also, what are the security provisions that have been put in place? Well, Uday, yes, the farmers have started coming to the national capital and they are being asked to stay there. Right now, I'm at the Ghazipur border and would like to show you the visuals from this particular place. If you see, heavy police deployment has been done, and if you could see, the paramilitary forces are also being brought here. You could see Rapid Action Force, CRPF, the police, Delhi police personnel have come here to make sure that the law and order can be maintained in the national capital. And you could see the multi-layer of barricading is being done. If you see, this is the first layer of barricading. Also, I request my camera person to show the other side also. If you see on the other side also, the 2 layer of barricading is being done, and also the concrete barricade is also being made with the fencing is also being made upon it to make sure that the farmer does not enter the border of this particular Ghazipur border and does not enter the national capital. Also, yesterday there has been a meeting of the farmers with the government, but this seems to be inconclusive, though there was no negotiation, as the farmers said that the government is asking for the more time, but they have already given them 2 years, and right now their demands are on the law and MSP, but they are saying that they are not ready to give their time and they will continue their protest, and that's why this all arrangement is being done to make sure that there is no untowards in the national capital. Also, we would like to show you the visuals from this particular expressway. This is the Delhi-Meerut expressway, and if you see, a traffic congestion could be clearly seen because all the borders, whether it's Singhu border, Tikri border or the Ghazipur border, all the borders connecting Delhi to Uttar Pradesh, Delhi to Haryana are being sealed, and that's why you could see how traffic congestion can be clearly seen on this expressway also. Also, I would request my camera person to zoom in and show the preparations are being done.
the police vehicles are being put in place. The loudspeakers are also being placed here to make sure if the farmers come, then the police announcement will be made to make sure that they should not enter the national capital and there should be no breach in the security. So you could clearly see the people are standing here for the long hours. Also, I would like to go close to them and ask them what problem are they facing. आप लोग कब से खड़े हुए हैं, क्योंकि आज फार्मर्स का प्रोटेस्ट होना है, कितनी दिक्कत हो रही है? अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आधे घंटे से ज्यादा हो गया। आधे घंटे से ज्यादा हो गया? 1 घंटे करीब हो गया। 1 घंटा हो गया। कहाँ जाना है आपको? जाना एक कोटे 4 मूर्ति। अच्छा, बहुत ज्यादा। देखिए, आप देख सकते हैं कितना लंबा जैम जो है। यू कुड सी अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स आर देयर एट दिस एक्सप्रेस वे। ऑल्सो वी ऑल्सो लाइक टू टॉक टू मोर पीपल। सर, वेयर यू आर गोइंग? कहाँ जा रहे हैं आप? लाल कुआं। कितनी दिक्कत हो रही है और कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटे ज्यादा हो गए मैम। आज फार्मर्स का प्रोटेस्ट होना है, जिस वजह से सिक्योरिटी भी आप देख रहे हैं, तो उनके कारण हम लोग परेशान और हो रहे हैं। So you could clearly see, the people are saying that because the farmers are reaching here in the national capital, you could see how the long queue of vehicles can be clearly seen. कहाँ जा रहे हैं आप? हम नोएडा जा रहे हैं। तो कब से आप लोग यहाँ से, क्योंकि बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। जाम है, बताओ क्या करूँ मैं, बहुत जाम लगा है। ड्यूटी जाते हैं, बड़ी मुश्किल शाम को आ पाए, बताओ मैं क्या करूँ। काफी देर, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा? हाँ। Okay, so Uday, you could clearly see in the situation here on ground, the security has lot increased and also the police personnel are coming regularly. Also since morning, the thousands of police personnel have increased at this particular place also. So you could clearly see how the police are preparing themselves to make sure that the farmer does not enter the national capital. Yes, Uday? Absolutely. Arzu, stay with us. We have Mahendra Mahi also joining us now from the Chilla border. Mahendra, what is the situation there at the Chilla border? What security provisions have been put in place by the police? Also, have farmers started reaching that border too? बिल्कुल। देखिए, बात की जाए करनाल की, तो करनाल जो है NH-44 पर सुरक्षा प्रबंध जो है किसान आंदोलन के चलते जो है। महेंद्र माही, ये सवाल आपसे था। बिल्कुल। देखिए, जहां मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर, तकरीबन लाखों की संख्या में जो वाहन है यहाँ से रोज दिल्ली जाते हैं, मगर आज की स्थिति आपको बिल्कुल अलग नजर आएगी। यहाँ ब्लैक कमांडो के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है, एसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, पीएससी की बात करें, तमाम जो फोर्स है यहाँ तैनात की गई है। मैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो भारी संख्या में जो ब्लैक कमांडो हो वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि जो इनपुट ये मिल रहा है कि ग्रेटर नोएडा और जो सूरजपुर से कुछ जो किसान है वो अपने जत्थे के साथ, अपने ट्रैक्टर के साथ यहाँ से निकलेंगे, जिसको लेकर तमाम एहतियात यहाँ बरत रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ बैरिकेड भी लगाए जा रहे हैं। जो सीमेंटेड बैरिकेड है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से हाइड्रा की सहायता से जो सीमेंटेड बैरिकेड होता है उसको लगाया जा रहा है। जो ट्रैफिक है वो आपको देखने को मिला, किस तरीके से लंबा ट्रैफिक ये देखने को मिला। तो आम जनता वो साफ तौर पर कह रही है इसमें हमारी क्या गलती है। तो जो ये आंदोलन चला उसकी वजह से 1 घंटे तक ये जो जाम में फंसे हैं। और तस्वीरें में आपको और ये देखिए बुलडोजर की सहायता भी निकाली, यानी कि जो भारी भरकम जो चीज है उनको हटाने के लिए बुलडोजर की सहायता निकाली। और कहीं ना कहीं ये जो चिल्ला बॉर्डर में जो एक तस्वीर है वो ये दर्शाता है किस तरीके से जो 2020 में किसान आंदोलन हुआ था वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर उसकी ऐसी आशंका, जिसको देखते हुए तमाम जो आला अधिकारी है वो आपको यहाँ देखना एक लंबा जाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए दूर दूर तक जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां केवल आपको जाम नजर आएगा। और सबसे एक हैरानी की बात है, देखिए सुबह तक यहाँ जो सीमेंट के बैरिकेडिंग नहीं थे, मगर अब यहाँ सीमेंट की बैरिकेडिंग लगी गई है। देखिए किस तरीके से हाइड्रा की मदद से जो सीमेंट की बैरिकेडिंग लगी है, चारों तरफ केवल आपको जाम की स्थिति नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सामान्य नजर नहीं जाएंगे। और तस्वीरें में दिखाऊंगा। देखिए अगर हम बात करें देखिए दिल्ली की तरफ जाएंगे तो यहाँ जो बैरिकेड जो हाइड्रा की मदद से यहाँ बैरिकेड लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए ये दिखाई देगा अब तक ये यहाँ ये तस्वीर
जी, लगता है महेंद्र माही से हमारा संपर्क जो है वो कट रहा है, मगर महेंद्र सिंह का इस वक्त रुख कर लेते हैं। करनाल से जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। करनाल में इस वक्त क्या स्थिति है? हरियाणा सरकार ने क्या क्या वहाँ प्रबंध जो हैं वो लिए हैं और सिक्योरिटी क्या वहाँ बढ़ाई गई है? क्या आप भी किसानों का मूवमेंट देख रहे हैं हाईवे पे? क्या स्थिति है वहाँ महेंद्र सिंह? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन पार्ट 2 को लेकर बीते करीब एक सप्ताह से एक्सरसाइज जो है पुलिस प्रशासन की सरकार की चल रही थी, देर रात वो सभी एक्सरसाइज जो है लगभग जो है नाकाम साबित रही है, क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरह से वार्ता केंद्रीय मंत्री और किसान संगठनों के बीच हुई थी वो बेनतीजा रही है। उसके बाद किसानों ने ये अल्टीमेटम जारी किया था कि वो सुबह 10 बजे जो है पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं इस समय NH-44 के करनाल कर्ण लेक पॉइंट पर मौजूद हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि किस तरह से कड़े सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। बैरिकेटिंग जो है NH-44 की कर दी गई है ताकि किसान जत्थों को जो किसान पंजाब की तरफ से आते हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो 3 टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं। हरियाणा पुलिस के 4 कंपनियां यहाँ पर डेप्यूट की गई हैं ताकि जब किसान जत्थे यहाँ से आए तो उनको दिल्ली जाने से रोका जा सके। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी है, कई रूट जो है यहाँ से डाइवर्ट अभी से कर दिए गए हैं ताकि हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो उसका फ्लो काफी कम हो। उनको वाया यमुनानगर या वाया पेवा के रास्ते से उनको चंडीगढ़ रास्ता दिया जा रहा है। जैसे में NH-44 की बात की जाए तो कड़े सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ से शंभू बॉर्डर जो हरियाणा और पंजाब की सीमा का पहला जो नाका पड़ता है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। जब 2020 में जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था उस समय भी इसी रास्ते से किसान जो है बड़ी संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली दाखिल हुए थे। तो यही वजह है कि करनाल का एक पॉइंट है काफी अहम माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर नाकेबंदी जो है वो कड़ी रखी गई है ताकि किसान जत्थों को यहाँ पर रोका जा सके। तो ऐसे में व्यवस्था की बात की जाए तो बीते 3-4 दिनों से ये पूरी एक्सरसाइज पुलिस की तरफ से की जा रही थी और बड़े बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.